دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لا کر ہم سامعین کے سامنے اپنا کلام پیش فرمائیں۔ میں چاہتا ہوں نظام کہن بدل ڈالوں، مگر اکیلے میرے بس کی بات نہیں۔ اٹھو اٹھو میری دنیا کے عام انسانوں، یہ کام سب کا ہے، دو چار شخص کی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ حال دل سننے کو وہ گوش بر آواز تو ہیں، حال دل سننے کو وہ گوش بر آواز تو ہیں، دل میں جو گھر کر لے وہ الفاظ کہاں سے لاؤں۔ حضرات گرامی، انسانیت کے خرمن پر کئی بار بجلیاں گری ہیں، باغ آدم میں کئی دفعہ آندھیاں آئی ہیں، وحشت و بربریت کے ہاتھوں نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے، لیکن آج آگ و خون کا جو کھیل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں شاید کہ کسی نے دیکھا ہو، اور یہ بات طے ہے کہ یہ کھیل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مسلمان غفلت اور لادینیت کا شکار رہیں گے۔ حضرات گرامی، ہر طرف مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے گیت گائے جا رہے ہیں، ہر سمت مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں، ان کی مسجدوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، ان کے مدارس و مکاتبوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک کا ایسا کوئی گوشہ نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں کی عزت و حرمت محفوظ ہو، ہر سمت لوٹ مار، خون ریزی، رہزنی، کہیں نئی نویلی سہاگنوں کی مات کا سندور اجاڑا جا رہا ہے، کہیں بچے یتیم کیے جا رہے ہیں، کہیں معصوم کنیاؤں اور باعصمت لڑکیوں کے سروں سے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں، کہیں معصوم بچوں کے حقوق پر چھری چلائی جا رہی ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر میدان میں مسلمان بری طرح پھر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ مسلمان پستی میں کیوں، مسلمان ذلت اور رسوائی کی نالیوں میں ریگنے پر مجبور ہے۔ کبھی تو یوں تھا کہ مسلمانوں کی سربت و شوکت کا سکہ چار باغی عالم میں بیٹھا ہوا تھا، کبھی تو مسلمانوں کی چوتھائی دنیا پر حکمرانی تھی، کبھی تو مسلمانوں کا نام سن کر کیسرا کسرا جیسے بادشاہوں کے دل پہلو میں یک لخت ٹھہر جایا کرتے تھے، کبھی تو مسلمانوں کے سوار افطار گھوڑے ہندوستان اور ترکستان کی دریاؤں میں اتر جاتے تھے، کبھی تو سمندر کی پرآش و موجیں مسلمانوں کو اپنی چھاتی سے گزر جانے کے لیے راستہ دے دیا کرتی تھی، مگر آج کیا بات ہے کہ مسلمان قدم قدم پر ذلیل رسوا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ جو سب کرتے تھے ہنس ہنس کے میرا نغمہ شوق، وہ جو سب کرتے تھے ہنس ہنس کے میرا نغمہ شوق، اب میری شکل سے بیزار نظر آتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ بھی وہی، اللہ کے لاڈلے رسول کی تعلیمات بھی وہی، اللہ کے لاڈلے رسول کا لایا ہوا دین بھی وہی، اسلام بھی وہی، اسلام کے قوانین اور ضوابط بھی وہی، مگر اب ہمارے نالے دل میں وہ اثر کیوں نہیں رہا، ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو رہی ہیں، ہمارے مظلوم ماں اور بہنوں کی سسکیاں بہنوں کی سسکیاں آسمانوں کے دروازے کیوں نہیں کھٹکھٹاتی، ہماری معصوم بچوں کی جگردوز چیخیں رنگ کیوں نہیں لاتی، خدائے ذوالجلال وقت کے ابروں پر سنگ باری کے لیے ابابیل پرندوں کا لشکر کیوں نہیں بھیجتا۔ اس قسم کے سوچوں نے ہمیں حواس باختہ کر دیا ہے، مغربیت کی ترقی کی چکا چوند نے سلف صالحین کے سنہرے نقوش کو ہمارے آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہے، مغربیت کا شوق و شنگ رنگ ہمارے دلوں میں اتنا گہرا اتر گیا ہے کہ اس اسلام کا سرمئی رنگ اس کے سامنے پھیکا لگ رہا ہے۔ مغربیت نے ہماری دینی سوچوں کو اس قدر مفلوج کر دیا ہے جو ہمارے لیے زہر
करने लगे हैं। हम अपनी तबाही और बर्बादी का सबब इस्लामी अहकाम को गर्दानते हैं। हमारे दिलों में ये बात जमा दी गई है कि इस्लाम तरक्की की राह में रुकावट है। अगर हम भी यूरोप की तरह जिंदगी के हर मैदान में अपनी औरतों को मर्दों के दोष बदोश जिद्दोजहद के लिए उतार दें तो बहुत जल्द तरक्की से हम किनार हों। ऐ काश हमें कोई समझाए कि हमारी इन्हीं घिनौनी सोचों ने हमें कहीं का ना छोड़ा। हमारी इसी मजहब बेजारी ही ने हमें पस्ती और तबाही की गहरी खाइयों में ढकेल दिया है। हमारी इसी लादीनियत ने हमारी सद्वत और शौकत छीन कर हमें उसमें मुअत्तल बना दिया है। खुदा और रसूल से बेवफाई और पैमान शिकनी ने ज़ेर करके दुनिया के सामने घुटनों पर बिठा दिया है। तारीख इस बात की गवाह है। वाक़ियात ज़बान हाल से चीख चीख कर कह रहे हैं कि जब तक मुसलमान सही मानों में मुसलमान रहे और वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू का दामन मजबूती के साथ थामे रखा, तब तक जिंदगी के हर मैदान में फतह और नुसरत से हम किनार रहे और कामयाबी उनके कदम को चूमती रही। लेकिन जब उन्होंने खुदा और रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो कसीर तादाद में होने के बावजूद कमजोर दुश्मन के हाथों में पिट गए। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। इस्लाम के गयूर फर्जंदो जंगे बदर का वाक़िया हम सबको मालूम ही होगा। 1000 कील कांटे से लैस होकर कुफार के मुकाबले में मुसलमान कितने थे? सिर्फ 313, वो भी बेसर सामान। किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं, तलवार है तो खंजर नहीं, और किसी के पास तो कुछ भी ना था। बस खुदा रसूल के सहारे लाठी और बल्लम लेकर मैदान जंग में उतर पड़े थे और कई दिनों की फाका कशी से पेट चिपके हुए चितमुलावर, लेकिन वो चट्टान की तरह सच्चे और पक्के मुसलमान थे। उनके शरीयानों में मजबूत कुव्वत ईमानी मौजूद थी। उनके दिलों में ईमान और यकीन की वो शमा जल रही थी जिसे कुफ्र और ज़लालत के झोंके हरगिज़ बुझा ना सकते थे। वो किसने तौहीद से सरशार थे। खुदा और रसूल की मोहब्बत ने उन्हें बैक वक्त 1000 कुफार से लड़ जाने का हौसला और आज़म अता किया था। कुफार को नाज़ता अपनी कसरत तादाद पर, कुफार को नाज़ता सब शिकन जंगजुओं पर, कुफार को नाज़ता वीरतन बहादुरों पर, कुफार को नाज़ता वसी वसाइल आला के हर गुज़र पर। वो मुसलमानों को लुक़मे तक समझ रहे थे कि अगर जंग छिड़ी तो मुसलमानों को खा जाएंगे, मगर मुसलमानों को यकीन था खुदा के इस ऐलान पर, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों को विश्वास था खुदा के पाक पैगंबर के पाक इरशाद पर कि मुसलमानों फतह तुम्हारी होगी, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ है। मेरे दोस्तों, तारीख गवाह है कि जब 313 हक परस्तों के मुकाबिल 1000 कुफार आए तो थोड़ी ही देर में हक परस्तों ने 1000 कुफार को गाजर और मूली की तरह काट कर रख दिया। बहुत कम कुफार मैदान जंग से बचकर निकल सके। मुसलमानों की हैरत अंगेज जीत से अक्ल इंसानी हैरान थी। फर्द हैरत से तारीख के औरात फड़फड़ा उठे थे। मुसलमानों की ड्रामाई और हैरत अंगेज जीत को दुनिया मुसलमानों की जंगी मुबारसत और अस्करी काबिलियत पर महमूल कर सकती है। मुसलमान गालिब हुए थे। वो इस्लाम की आलमगीर सदाकत और हक़ानियत की शक्ति थी कि जिसने मुसलमानों को फतह अज़ीम से हमकिनार किया था। वो ईमान और यकीन के कोहे गिरा थे। वो अज़्म इस्तिक़लाल के पैकर थे। खुदा और रसूल की मोहब्बत ने उन्हें बैक वक्त 1000 कुफार से लड़ जाने का हौसला और आज़म अता किया था। उनका हर फेल अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ऐन मुताबिक था। क्या मजाल थी कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ उनसे कोई फेल सरदर्द हो जाए। इसीलिए तो खुदा की नुसरत उनके साथ थी। वो जहां भी जाते थे कामयाबी उनके कदम को चूमा करती थी और इसी खुदा की नुसरत ही का भरोसा था। जब वो 313 की तादाद में थे तो पूरे कुफार अरब को चैलेंज दे दिया और जब लाखों की तादाद में पहुंचे तो पूरी तस्दीर का लेकर उठ खड़े हो गए और उनके मुकाबले में जो भी ताकतें आई पाश हुई। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से आप तमाम ग़ज़वात को देखिए और तारीख के औरात को खोल कर पढ़िए कि मुसलमानों को जो फतह नसीब हुई और जो इक़्तिदार मिला
वो उनके अल्लाह से लो लगाने के बुनियाद पर मिला। आज हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम परेशान हैं, मजलूम हैं, जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसकी वजह यही है कि आज हम अमल में कमजोर हैं, हमारा ईमान कमजोर है, हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ वाबस्ता नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने ताल्लुक को अल्लाह के साथ वाबस्ता करें और अल्लाह के सिवा किसी और के सामने अपने हाथ को ना फैलाएं। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे समीना व अताना के सिवा हमारा कोई कौल और फेल ना हो। जब ऐसा हो तो हमारी कुव्वत सिर्फ अपने नफ्स और जिस्म की कुव्वत ना होगी, बल्कि उस हकमुल हाकिमीन की कुव्वत होगी कि जिसके सामने सारे जहां की हर चीज तौअन व करहन सर्व सुजूद है और हमारी जात उस नूरुस समावाति वल अर्द के जलवों से मामूर हो जाएगी जो तमाम आलम का महबूब हकीकी है। मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हमें उलूम व फनून और मादी वसाइल की जायज अहमियत से इनकार है। उलूम व फनून और मादी वसाइल भी खास अहमियत के हामिल हैं, मगर मुसलमानों के लिए ये सब चीजें दूसरे दर्जे की हैसियत रखती हैं। मुसलमानों के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखें और आकाए नामदार ताजदार मदीना महबूब किबरिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हो। फिर देखना कि हमारी खिजा रसीदा चमन में इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर एक बार बाहर आएगी और आरज़ुओं की हर गली यकायक खिलखिला कर हंस पड़ेगी कि मुसलमानों उठो, कुरान की अजमत को चमकाओ, जहाने पे अमा को आफियत के राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।